Systems Limited. I welcome you all and I even thank you all for giving your time and joining us today for company's forthcoming IPO. देवियों और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स लिमिटेड की IPO कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। उसके लिए एक बार पुनः आपका कंपनी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया था। Before we begin, let me first introduce the Concord Enviro Systems Limited management to you. From the company, we have Mr. Prayas Goyal, who is the Chairman and Managing Director, Concord Enviro Systems Limited. Along with him, we even have Prerak Goyal, who is the Executive Director, Concord Enviro Systems. We also have Abhijit Gakhle, who is the Head Strategy, Mergers and Acquisition for the company. From the BRLM side, we have with us Mr. Hiren Rai Pancholia, who is the Director, Equirus Capital Private Limited. I would now like to invite Mr. Hiren Rai Pancholia, Director, Equirus Capital Private Limited, the BRLM for the company, to kindly proceed and initiate the proceedings. Hi, good afternoon all. Thank you very much for your time. As some say, Jal hi Jeevan hai, and then we also have the next major war in human civilization will be for water. Although these are just two extreme ends, it is just to highlight the supreme importance of water in our daily lives. Not only the water we drink, but also we drive, and it's an essential element. As the world moves to more and more measures focused on sustainability, we have a company here which leads such efforts from the front at a global reach and scale. It is our privilege to introduce to the capital markets Concord Enviro Systems. To quickly highlight the issue details, the price band is 665 to 701 per equity share. The fresh issue is 175 crores, the OFS of 46.41 lakh shares. The issue size is roughly 500 crores. In terms of dates, the issue opens on December 19, Thursday, closes on 23rd December, Monday. The anchor open and close is December 18th. I would now like to invite the management to give us a quick understanding of the Concord story. Over to you. Thank you. Thank you, Hiren ji. And very good afternoon, namaskar, and welcome to you all. Thank you for giving us your time today. I'd like to take you through a small presentation introducing the company and its activities. Sorry about that. It's not on the screen. Yeah, that's okay. Next one. Thanks. So, as Hiren ji said right at the start, water stress के बारे में हम सभी को जानकारी है. Climate change से जो changes आज की दुनिया में चल रहे हैं उनके बारे में भी it's commonplace. मीडिया में, बच्चों को स्कूल में इसकी सीख आज सभी को दी जा रही है. एंड इसके चलते जो स्टेटिस्टिक्स बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स के बारे में लिखा पढ़ी होती है, हम हर रोज़ पढ़ते हैं. बट जनरली जो हमें देखा जा रहा है कि इंडिया की जो सिचुएशन है एज अ वाटर स्ट्रेस नेशन, हम मिडल ईस्ट रीजन के बाद ऑलमोस्ट नंबर 2 के वाटर स्ट्रेस रीजन के तौर पे बाहर आते हैं. और हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, वो काफ़ी तेज़ी से घटती जा रही है. तो वी नो दैट वी आर इन अ वाटर स्ट्रेस काइंड ऑफ रीजन. और इस के बैकड्रॉप में जो इंडस्ट्री, जो हमारी आज इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो हमारे देश ने किया है और जो दुनिया में हम देख रहे हैं, और इंडस्ट्री के लिए पानी एक की इंग्रेडिएंट है कि वो फार्मा केमिकल में वो रिएक्शन के माध्यम में काम आता है, टेक्सटाइल डाइंग में वो एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम जो डाइज और केमिकल्स को
लेके कपड़े पे चढ़ता है उस माध्यम से काम आता है। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में वो प्रोडक्ट में ही समा जाता है, भले वो ड्रिंकिंग वाटर हो या कोका कोला हो। तो वाटर इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब जो इंडस्ट्रियल वाटर की हम बात करें तो इंडस्ट्रियल वाटर में जो हम हमारे कस्टमर्स और क्लाइंट से जो हमारी बातें चलती हैं उनमें हमें ये पता चलता है कि क्या पेन पॉइंट्स हैं कस्टमर्स को इंडस्ट्रियल स्पेस में पानी के चलते, क्या पेन पॉइंट्स हैं। एक तो उन्हें अवेलेबिलिटी की गारंटी चाहिए, क्योंकि अगर कंटिन्यूस बेसिस पे आपको पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस इमीडिएटली हॉल्ट पे आ सकता है। दूसरा, जो आप प्रोडक्शन से पानी यूज़ करके आप एक प्रदूषित पानी या वेस्ट वाटर बनाते हैं, वो आपकी ईटीपी से पास होके अगर वो एक्सटर्नल डिस्पोजल में जा रहा है, वेदर वो कोई सीईटीपी में जा रहा है या किसी पाइपलाइन में जा रहा है, अगर उसमें कोई रुकावट आ गई तो आपका बिजनेस अगेन उस पर प्रोडक्शन आपका लॉस हो सकता है और आपका एक तरीके से कंपनी को रिस्क आ सकता है। सो कस्टमर्स आर लुकिंग फॉर वाटर सिक्योरिटी कि एक तो इनपुट साइड वाटर पे और दूसरा कि हमारा जो प्रदूषित पानी है या एफ्लुएंट है उस एफ्लुएंट को बाहर निकालने के लिए, डिस्पोज करने के लिए सेफली, लीगली, कंप्लायंट वे में हम उसको कैसे अपने आप को सिक्योर कर सके। और इसका सबसे बड़ा एक चीज़ ये है कि इसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि पानी की कॉस्ट जो हम देख रहे हैं कि पास्ट में जो जीआईडीसी ले लें, अगर पानी की कॉस्ट 15 साल 20 साल पहले होती थी और आज जो पानी की कॉस्ट है जीआईडीसी की ले लें या प्राइवेट जो आपके इंडस्ट्रियल पार्क्स आ रहे हैं, तो उस पानी की कॉस्ट में ऑलमोस्ट एक 10 गुना का इंक्रीज हुआ है। तो कस्टमर्स की, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स की ये भी एक पेन पॉइंट है। ऑब्वियसली क्वालिटी और करोजन और एसिड वगैरह के रिलेटेड चैलेंजेस हैं। तो इसके बैकग्राउंड में हमारी कंपनी कॉन्कॉर्ड एनवायरो जो है सर, वी प्रोवाइड वाटर रीयूज एंड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सॉल्यूशंस। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कस्टमर का जो प्रदूषित पानी है, उनका जो वेस्ट वाटर है, उसको हम हमारे सिस्टम्स में लेके कंप्लीटली उस पानी को हम उन्हें कस्टमर्स को वापस दे देते हैं एज रीयूजेबल क्वालिटी वाटर, एज ए क्वालिटी ऑफ वाटर जो उनके फ्रेश वाटर को रिप्लेस कर सके। तो यदि एक क्लाइंट अगर 1000 टन पानी अपने प्रोडक्शन में यूज़ कर रहा है, उसका वो वेस्ट वाटर निकाल रहा है, वो पूरा 1000 टन पानी हम उन्हें वापस दे देते हैं जो उनके वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से उन्हें वापस मिल जाता है। तो वो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी उनकी वो 1000 टन पानी पे निकल जाती है। उस 1000 टन वेस्ट वाटर को डिस्पोज करने के लिए उनकी डिपेंडेंसी निकल जाती है। इसके लिए सर वी आर अमंग द 2 लार्जेस्ट रेडी सोल्यूशन प्रोवाइडर्स इन द कंट्री। कॉन्कॉर्ड एनवायरो इज ऑल्सो ए टेक्नोलॉजी बैक कंपनी। जो सॉल्यूशंस हम कस्टमर्स को देते हैं, दे आर बैक बाय आवर R&D, बाय आवर इनोवेशन। हमारे पास 4 ग्रांटेड पेटेंट्स हैं और 9 अप्लाइड पेटेंट्स हैं। वी आर वेरी स्ट्रांगली बैकवर्ड इंटीग्रेशन। हम ना सिर्फ एक इंटीग्रेटर हैं जो बाहर से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेके उसको इंटीग्रेट करता है, ये सारी चीज़ें हम अपने ही डिज़ाइंस, अपनी टेक्नोलॉजी से मैन्युफैक्चर करते हैं। भले ये बायोगैस सिस्टम्स हों या मेम्ब्रेन्स हों, जो हम खुद अपनी मेम्ब्रेन्स कास्ट करते हैं, हम अपने सिस्टम्स बनाते हैं और उनका हम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी हमारे कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी जो बिजनेस लाइंस हैं, ब्रॉडली 4 बिजनेस लाइंस हैं। उसमें से पहली बिजनेस लाइन हमारी इज रिलेटेड टू सेल्स ऑफ सिस्टम्स एंड प्लांट्स। इसको आप हमारा कैपेक्स बिजनेस कह सकते हैं, जिसमें हम कस्टमर्स को ये सिस्टम्स बेचते हैं जिनमें वो वाटर रिकवर कर, वेस्ट वाटर को रिकवर कर पाएँ और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज कर पाएँ। और दूसरा हमारा जो आफ्टर सेल्स बिजनेस है, जिसमें हम उन्हें स्पेयर्स, कंज्यूमेबल्स और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज विद डिजिटाइजेशन एंड IoT सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम अपना O&M बिजनेस कहते हैं। और चौथा हमारा बिजनेस लाइन है जो हम रिसेंटली जिसमें आए हैं, वो है इंस्टॉलेशन ऑफ CBG प्लांट्स, जिसके बारे में मैं आगे और बात करूँगा। इसमें आप देख रहे हैं कि हमारी जो रेवेन्यू है FY24 में करीब 496 करोड़ की हमारी रेवेन्यू थी। और उस रेवेन्यू का ब्रेकअप ऐसा है कि करीब 60% revenue comes from systems and plant sales and 40% of revenue comes from the after sales part of the business. As such, Concord company जो है वो we are a global kind of a solution provider, जो हम पिछले 15 साल से ग्लोबल स्केल पे काम कर रहे हैं और आज तक हमने 14 कंट्रीज़ में हमारे सिस्टम्स सप्लाई किए हैं। और कुछ जो हमारे मेन कस्टमर्स हैं इंडिया और इंटरनेशनल में, जैसे टैग्रोस है, डियाजो हैं, लैंक्सेस हैं, इनके साथ हम काम करते हैं।
सो जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, हम खुद अपनी मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। हमारे अल्ट्रा हाई प्रेशर रिवर्स ऑस्मोसिस में हम पहली कंपनी थे इंडिया में जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी लेके आए थे। हमारे जो इवेपरेटर्स हैं जो कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज में काफ़ी एक कॉमन सोल्यूशन है कि हर इंडस्ट्री में आप जानते होंगे, केमिकल फार्मा में स्पेशली गुजरात, अंकलेश्वर, वापी बेल्ट में, कि इवेपरेटर सबके पास है। जो हमारा जो इवेपरेटर है उसको हम वेस्ट हीट इवेपरेटर कहते हैं, क्योंकि वो इवेपरेटर कोई लाइव स्टीम नहीं मांगता और उसकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ऑलमोस्ट नील है, एंड जिसकी वजह से उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट और उसका कार्बन फुटप्रिंट इज अमंग द लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो इस तरीके से हम मेम्ब्रेन से लेके इवेपरेटर से लेके कंप्लीट पानी को ड्राई कर देते हैं। पानी उनको कस्टमर को वापस मिल जाता है और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड्स जो क्रिस्टलाइज होके कस्टमर उसको सिक्योर लैंडफिल में। जैसे मैंने बताया उसमें हम बायोगैस या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के प्लांट्स ऑफर करते हैं, मेम्ब्रेन बेस्ड सेपरेशन आरओ प्लांट्स ऑफर करते हैं, वेस्ट हीट इवेपरेटर्स ऑफर करते हैं, और जो बायोगैस की एक हम पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से पायनियर्स हैं एक तरीके के बायोगैस के इंडिया में, उनके भी हम प्लांट्स अभी सीबीजी के मात्रा से ऑफर करते हैं इंडस्ट्री में। I'll just talk about the history of the company. So हमारी कंपनी 92-93 में हमने इस्टेब्लिश की थी। सबसे पहले हमने सी वाटर डिसैलिनेशन ऑन बोर्ड शिप्स एंड सबमरीन्स, ये हमारा पहला वेंचर था। तो हमने काफ़ी हमारे जो ऑफशोर क्लाइंट्स रहते हैं उनके लिए हमने ये प्लांट्स दिए जो वो अपने शिप्स और सबमरीन्स पे लगा के वो अपना सीधा सी वाटर से दे कुड गेट ड्रिंकिंग वाटर फॉर देयर ऑन बोर्ड पर्पसेस। उसके बाद 99-2000 में हमने इंडस्ट्रीज में फोकस करना चालू किया। तभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी कि दे वांटेड हाई पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज टू स्टार्ट लुकिंग एट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो जैसे डिस्टिलरीज थी, केमिकल फैक्ट्रीज थी, जहाँ जिनका पानी काफ़ी बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट होकर उसको डिस्पोज ऑफ सेफली नहीं किया जा सकता, वहाँ पे आरओ प्लांट्स लाके हमने उनका रिसाइकिल करना चालू किया है। सो वी डन ऑल ऑफ दिस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर ओन टेक्नोलॉजी। 2008-9 में हमने एक बायोलॉजिकल कंपनी का एडिशन किया था हमारे ग्रुप में, और उसके बाद हमने एक्सपेंशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ आवर ओन R&D की। हमने एक UHP आरओ ऐड किया। उसके बाद 2018-19 में हमने वेस्ट हीट इवेपोरेटर प्रोडक्ट ऐड किया। On the basis of that, now we are a one-stop for all kinds of ZLD requirements that companies have. So हम आज किसी भी इंडस्ट्री की कंपनी को हम जाके एक पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दे सकते हैं जो हमारे डिज़ाइन और हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। मेन जो डिफरेंशिएटर अगर आप देखेंगे, वाटर कंपनीज बहुत हैं, हम एक इंडस्ट्रियल फोकस्ड कस्टमर हैं, तो हम वेंडर हैं सॉरी। सो जो हमारा मेन आउटपुट है वो इंडस्ट्रीज के लिए, बिकॉज इंडस्ट्रीज नीड टू रिसाइकिल वाटर। गवर्नमेंट आज खाली पानी पीट करके उसको बाहर फेंकता है, हम लोग एक्चुअली इंडस्ट्री को इंकरेज करते हैं कि वो पानी उसको रीयूज कर पाए। तो ZLD इज ऑब्वियसली वन ऑफ आवर एक्सपर्टीज, और ZLD में अगर आपको मालूम है तो एनर्जी एक सबसे बड़ा इनपुट कॉस्ट है फॉर ऑपरेटिंग अ ZLD प्लांट, और वहाँ पे हमारी की स्ट्रेंथ है क्योंकि हम जो पानी और एनर्जी का जो नेक्सस है हम उसके ऊपर काम करके वी यूज द बेस्ट टेक्नोलॉजीज टू बी एबल टू गिव एफिशिएंट ZLD कॉस्ट। हमारा ZLD का खर्चा ऑपेक्स में हमारे कंपटीशन से करीबन 40% कम रहता है। सो दैट इज आवर की ऑफरिंग टू द इंडस्ट्री। ऑब्वियसली जैसे प्रयास ने समझाया कि हमारी जो सारे सोल्यूशंस हैं वी आर एबल टू इंटीग्रेट देम फ्रॉम आवर ओन टेक्नोलॉजी। सो इट्स ऑल इन हाउस डिज़ाइंस जो हम अपने क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं। हमारी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग R&D टीम है जिससे ये डिज़ाइंस हम ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस हम इनोवेट करते रहते हैं। हमारी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट वाटर भेजते हैं, हम उसका पूरा विकरण करके देखते हैं कि अगर उसको कैसे ट्रीट किया जाए, व्हाट इज द बेस्ट वे टू बी एबल टू ट्रीट दैट मटेरियल एंड एट व्हाट कॉस्ट कैन इट बी ट्रीटेड, व्हिच इज important for industry. And obviously today we are a diversified company, as Prayas said again, 14 countries. We have marquee clients in India and overseas. अगर आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिकल सेक्टर्स में काफ़ी जो बड़ी कंपनियां हैं इंडिया में भी वो भी हमारे क्लाइंट्स हैं। सो वी हैव काइंड ऑफ बीन एबल टू सर्विस अ गुड क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स इन इंडिया। इंडस्ट्रियल चैलेंजेस जो हम एड्रेस करते हैं मेनली कॉम्प्लेक्स वेस्ट वाटर्स के हैं, एंड उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन है दैट इज़ व्हाट वी वांट टू टारगेट। So with our products, especially the high pressure RO membranes, the WHE systems, what our offering, as I explained, is really to reduce the energy and then make it very convenient for the client to operate these plants, recover water, recover other resources, and जो उनका overall cost है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं।
जो अगेन व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि टुडे इंडस्ट्री इज फेसिंग अ वेरी हाई कॉस्ट ऑफ वाटर। एक तो इनपुट कॉस्ट ऑफ वाटर है, फिर उसको ट्रीट करने का कॉस्ट है। वो कॉस्ट के कंपैरिजन में अगर वो रिसाइकिल करे और पानी को वापस यूज करे, so he mitigates his input water. That is the tipping point which today we are seeing in the market. मतलब आज काफ़ी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो अगर वो अपना पानी रिसाइकिल करना चाहें तो they are actually able to add value to the P&L. मतलब उनके लिए actually पैसा बचेगा, and that's where this industry is kind of moving in a very different segment in the last few years. सो कॉन्कॉर्ड में हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिज़ाइन करते हैं, भले वो फार्मास्यूटिकल हो, केमिकल हो, टेक्सटाइल हो, ऑटोमोबाइल हो। उन सारे कस्टमर्स के लिए इंडस्ट्री स्पेसिफिक हमारे डिज़ाइन होते हैं। हम उनके लिए खुद अपनी मेम्ब्रेन्स कास्ट करते हैं हमारी फैसिलिटीज़ में, एंड डिफरेंट टाइप की मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको वेस्ट वाटर स्पेसिफिक सोल्यूशन सब प्रोवाइड करते हैं। फिर उनके हम मेम्ब्रेन से लेके हम उनके इंटीग्रेटेड सिस्टम्स एंड प्लांट्स बनाते हैं और उन्हीं प्लांट्स की हम O&M सर्विसेज करते हैं। तो ये एक अंडर वन बैनर आपको शायद ही बहुत कम कंपनीज दिखेंगी वो हैव द इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ एंड टू एंड सोल्यूशन राइट फ्रॉम मेम्ब्रेन कास्टिंग टू ऑफरिंग ऑपरेशन मेंटेनेंस सर्विसेज एंड अक्रॉस द बोर्ड फ्रॉम एज आई मेंशन फ्रॉम फार्मास्यूटिकल से लेके फूड एंड बेवरेज तक हमारे जो सोल्यूशंस हैं वो वाइड रेंज में अप्लाई होते हैं। करीब 40% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्लाइंटेल। जैसे मैंने आपको कहा कि करीब 15 साल से हम इंटरनेशनल मार्केट में अपने कस्टमर्स को सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, लैटिन अमेरिका, अक्रॉस कोलंबिया, चिले, पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया। In fact, in FY24, we also got our first order for zero liquid discharge from the US. So the international kind of footprint of our company is very strong. हमारी दो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, एक है जस्ट आउटसाइड मुंबई एट अ प्लेस कॉल्ड वसई, और दूसरी है UAE में इन शारजा। आवर UAE facility essentially caters to our international clients and the India facility caters to our India clients. सो हमारी जो कस्टमर बेस है वो भी डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि इंडस्ट्री में आपको जानते ही हैं कि हर इंडस्ट्री का ही साइकिल चलते रहता है, बट एज यू कैन सी वी आर क्वाइट काइंड ऑफ वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस द इंडस्ट्रियल सेक्टर। फूड एंड बेवरेज जिसमें अल्कोबेव इंक्लूडेड है वो हमारे लिए पिछले 2 सालों से इज बीन वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स। उसके अलावा फार्मा केमिकल ट्रेडिशनली हमारे लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेक्टर रहे हैं, जिसमें गुजरात इज especially in across the Vapi Ankleshwar belt has been one of our biggest markets for this part. उसके अलावा टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड काफ़ी अदर सेक्टर्स में हम काम करते हैं। गवर्नमेंट जो आप ऊपर देख रहे हैं राइट एट द टॉप, हमारा बहुत कम एक्सपोजर है गवर्नमेंट सेक्टर में वाटर में, क्योंकि म्यूनिसिपल सेक्टर में हम आज के टाइम में बिल्कुल काम नहीं करते हैं। गवर्नमेंट के साथ जो हमारा एक्सपोजर है वो केवल थोड़ा सा डिफेंस में है, जहां हम ऑफशोर डिफेंस के लिए काम करते हैं विद डिसैलिनेशन। सो R&D इनोवेशन के लिए R&D का जो सपोर्ट है वो हम कंटिन्यूली करते हैं। हमारा वी हैव अ 25 मैन फोकस टीम on R&D at our facility in Vasai. We have almost like a 5,000 square foot R&D center जो कंटिन्यूसली नए मेम्ब्रेन्स, नए प्रोसेसेस और नए सेपरेशन एप्लीकेशंस को डेवलप करते रहता है, और उनके लिए IP फाइल होते रहते हैं। एज आई मेंशन पहले 9 IPs are under application. Myself and my brother Prerak, हम दोनों 20 साल प्लस से इस कंपनी में हैं, प्रोवाइडिंग a stable management along with our professional team of people right across production, technology, accounts and finance, and of course working under a guided by a well respected board of directors. In terms of the growth prospects of the company, तो हमने जो अभी in the last 20 years the kind of work that we've done in the industrial sector, हम उसको कैपिटलाइज करना चाह रहे हैं। सो हमारा जो मेन फोकस है कि हम नए प्रोडक्ट्स जो हमने लाए हैं, जैसे हमारा वेस्ट हीट इवेपोरेटर बिजनेस है, और जो हमने कंटेनराइज प्लांट्स बनाते हैं आजकल हम क्लाइंट्स के लिए, ताकि वो उसको फटाफट डिप्लॉय करके चालू कर सकें और अपना पानी को रिसाइकिल कर सकें। हम उसकी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज़ सम रिलेटिवली न्यू प्रोडक्ट्स दैट वी एडेड एंड कैपेसिटी इंक्रीज वहाँ पे ज़रूरत है। अदरवाइज जो हमारा मेन फोकस है, हम जोग्राफिकल एक्सपेंशन करने चाह रहे हैं।
So we are looking at new markets जहाँ पे local governments are changing the compliance norms. जैसे अभी मेक्सिको में रिसेंटली हुआ है कि 1-2 साल पहले गवर्नमेंट ने आके बोला भाई आप ये पानी जो आप पहले बाहर फेंक सकते थे वो भी आप बाहर नहीं फेंक सकते, आपको एक पर्टिकुलर क्वालिटी मीट करनी पड़ेगी। तो जो पूरी इंडस्ट्री थी वहाँ पे दे वर नॉट एबल टू नाउ डिस्चार्ज दैट वाटर आउट, तो उनको रिसाइकल और ZLD सिस्टम्स की अभी डिमांड है। तो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस दोज काइंड ऑफ मार्केट्स, और ऐसे करके काफ़ी देश हैं आजकल जहाँ पे या तो पानी की कमी की वजह से या तो पोल्यूशन बढ़ने की वजह से ये सब लॉज लाए जा रहे हैं। सो दैट बिकम्स अ की एड्रेसेबल मार्केट फॉर अस। ऑब्वियसली इन आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो क्योंकि हमने इवेपोरेटर्स करीबन 5 से 6 साल पहले चालू किया था, दे आर टुडे लुकिंग एट अडॉप्टिंग दैट टेक्नोलॉजी। तो हम उनको हमारे नए प्लान्स नए सिस्टम्स बेच रहे हैं। पूरा हमारा O&M का जो बिजनेस है जो 40% रेवेन्यू आता है, देन वी आर एबल टू टैप इनटू द एंटायर वॉलेट शेयर ऑफ आवर क्लाइंट्स। एंड ऑब्वियसली जैसे हमारे CBG की बात की, दैट्स समथिंग वी वांट टू डू गोइंग फर्दर। और हमारे पेपर यूज बिजनेस भी है, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते वेस्ट वाटर में। दे थिंक इट्स नॉन प्रोडक्टिव, विच इज़ अ फैक्ट। अभी आपके पास अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो आप ऑब्वियसली रिसोर्सेज वहाँ डालोगे जहाँ पे आपको प्रोडक्टिव रेवेन्यू मिलेगा। सो व्हाट वी डन इज हमने 2016 में एक JV सेटअप किया था, उसमें हम 49% पार्टनर हैं, बाकी इन्वेस्टर्स हैं, जहाँ पे हम क्लाइंट्स के लिए प्लांट लगाते हैं उनकी फैक्ट्री में अपने कॉस्ट पे, और चला के उनसे जितना पानी रिसाइकिल किया उसके लिए कॉस्ट रिकवर करते हैं। सो दिस पेपर यूज बिजनेस इज ऑल्सो समथिंग विच इज गेनिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन इन द इंडियन मार्केट स्पेस, और आज काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनीज हैं जो हमसे वो उस सिस्टम पे प्लांट लेती हैं। जस्ट टॉक अबाउट द ऑर्डर बुक, तो आप देखेंगे जैसे एंड ऑफ 24 में हमारे पास करीबन 350 करोड़ के ओपनिंग ऑर्डर्स थे। दिस इज ओनली आवर सिस्टम्स एंड प्लांट्स बिजनेस, बिकॉज हमारा जो O&M और स्पेयर्स बिजनेस है वो करीबन 40% रहता है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक गिवन वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे एक्सटेंड होते रहते हैं, दैट रेवेन्यू इज प्रीटी स्टेबल फॉर अस। तो हमारे जैसे 350 करोड़ का सिस्टम्स और प्लांट्स रेवेन्यू था, विच इज़ नाउ ग्रोन एट द एंड ऑफ ऑगस्ट टू 373 करोड़। अगेंस्ट दिस नंबर अगर आप देखेंगे हमारा करीबन 1 साल का रफली ऑर्डर बुक रहती है विच वी कन्वर्ट। ऐसे भी क्लाइंट हैं जो हमें आके 2-3 महीने में हम सिस्टम सेटअप करके उनको दे देते हैं, लेकिन अगर कभी लंबा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें EPC इंस्टॉलेशन कमीशनिंग का पूरा स्कोप रहे और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो करीबन 12 से 18 महीने में चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करें तो एक हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैपेक्स है, क्योंकि जैसे मैं समझा रहा था हमारा जो वेस्ट हीट इवेपोरेटर का नया प्रोडक्ट है उसके लिए हम कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं और वो हमारी UAE फैसिलिटी में आएगा, तो वहाँ पे करीबन 25 करोड़ का हमारा कैपेक्स आउटले रहेगा। हमारी वसई फैक्ट्री हमने जैसे ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी है, वी काइंड ऑफ ग्रोन आउट वेरी ऑर्गेनिकली, तो हमारे पास मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हम उसको असिमुलेट करके अभी एक नई बिल्डिंग बनाएंगे जहाँ पे हमारी डीबॉटलनेकिंग और थोड़ी इम्प्रूवमेंट। ये स्ट्रैटेजीज का ही कंटिन्यू करने के लिए आई जस्ट टॉक अबाउट अ कपल ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें दिख रही हैं इंडियन मार्केट में, ऑब्वियसली इट इज़ द वेस्ट वाटर बिजनेस विच इज़ अ वेरी बिग फोकस, एंड ऑब्वियसली दैट कम्स विद ZLD, क्योंकि जैसे ही कंपनीज रिसाइकिल करती हैं उनको ZLD की जरूरत पड़ती है। बट ऑल्सो इन द कोस्टल एरियाज ऑफ द कंट्री पानी की कमी हो रही है वहाँ पे, और गवर्नमेंट डजंट हैव द एबिलिटी टू बी एबल टू काइंड ऑफ cater to those markets. So what we are seeing is that a lot of industries are setting up seawater desalination plants for their own requirement. तो जैसे वाइजैक एरिया है, कच्छ एरिया है, वहाँ पे हमने हमारे क्लाइंट्स को डिसैलिनेशन प्लांट्स दिए हैं ताकि वो जो डिपेंडेंसी उनकी गवर्नमेंट से पानी लेने में है they can set it up on their own. And again, this is a sector we see which will grow significantly. On a geographical expansion point of view, as Prayas said, we are pretty much across the world. आज हमारे जो मार्की क्लाइंट्स हैं उनकी फैक्ट्रीज करीबन हर देश में हैं, तो हम उनके साथ डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू देन लुक एट द मार्केट्स विच आर more attractive and recycling ZLD is an option, and we kind of keep penetrating those markets. CBG. तो CBG आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोदी साहब की लीडरशिप के अंदर देयर इज अ ग्रेट फोकस ऑन सेटिंग अप CBG प्लांट्स। तो कॉन्कॉर्ड पिछले 20 साल से बायोगैस सिस्टम्स फॉर वाइड वैरायटी ऑफ फीड स्टॉक्स के लिए प्रोवाइड करते आ रहा है। दिस इज अ कोर एक्सपर्टीज इन द कंपनी, और इसके चलते हमने अपने पहले CBG कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हैं। तो
We are in the CBG space, and we think this is it's a very good contribution to the opportunities in rural India to use biomass, etc., and increasing focus on sustainability. Just to talk about the financial summary, so as we said, we delivered about 496 crores in FY24. Our EBITDA margins have been pretty consistent, in fact profitable across the years. In 22-23 जो पैट मार्जिन आप ड्रॉप देख रहे हैं वहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं. It was a one-time write-off, but otherwise our return and equipment turnover ratios have been consistently increasing, and that will help us deliver better returns as well in the future. In terms of order book, जैसे total order book अगर आप देखेंगे कंपनी की करीबन 501 करोड़ की total order book है, उसमें से 373 systems और plants है और बाकी 118 करोड़ का 1 year जो operation maintenance जो after sales का business है वो 1 year वो order book है. Just to also talk about working capital cycle, तो हमारा जो business है अगर आप देखेंगे debtors और creditors में we are pretty much close to our industry benchmarks. लेकिन क्योंकि हम इतने बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं, हम अपनी खुद मेम्बर्स बनाते हैं, हमारे काफ़ी O&M साइट्स हैं जहाँ के लिए हमें कस्टमर को 6 या 8 घंटे में उनको सर्विस करना पड़ता है. वी हैव अ स्टॉक डेवलप फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस, तो उसकी वजह से हमारा स्टॉक थोड़ा लेट्स से फ्रॉम आवर पीयर्स स्लाइटली हाई रहता है. बट अगेन आई मीन एज ग्रोथ इज कमिंग इन दोज नंबर्स ऑब्वियसली लुकिंग बेटर. This is just a comparison of the peers that you would see, you could compare with us in the listed space. So again, just to highlight in terms of margins, I think we are pretty competitive, and yeah, the growth ROEs are improving. ये हमारा company structure है. Again, this should take you through quickly. So Concorde Enviro-Systems obviously holds all the businesses. हमारे इसमें जो highlight करना चाहता हूँ 2 companies, Roserve जो मैं आपको बताया था, हमारा paper use business है, वहाँ पे हम 49% पार्टनर्स हैं, और एक हमारी WHE सिस्टम्स करके है, वहाँ पे हमारा जो सारा जो थर्मल इनिशिएटिव्स हैं वाटर में वो वहाँ से होता है. दिस इज अ जॉइंट वेंचर विद अ जर्मन पार्टनर. इन टर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग, 39% इज held by our PE investors called Global Environment Fund. They invested back in 2015, and yeah, they have kind of been with us throughout, and balance 61% is with the family. Yeah, so that concludes our presentation. Multiple conferences going on, so I want to thank you for your participation. We look forward to your wholehearted support. ये IPO को successful बनाने के लिए आपका support लगेगा हमें. Just recapping the issue details, the price band is 665,701 per equity share. The fresh issue is 175 crores. The OFS of 46.4 lakh shares. Issue opening on December 19, closing on 23rd. Anchor open and close tomorrow, which is December 18. Again, thank you so much for your time.